Hello, my dear students. Good morning. We are now on to the unit number 5, electromagnetic wave, chapter 8, and the last chapter in first book, electromagnetic wave. Electromagnetic wave begins with the failure of Ampere's circuital law. Basically, this chapter is very small chapter, and it begins with the failure of Ampere's circuital law. As per Ampere's circuital law, we know that the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu 0 times of I. यानी एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से V डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I होता है. बट अगर मैं इस सर्किट की बात करूं जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बैटरी सर्किट में करंट भेज रही है I, यहां पर लगा है मैंने कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस रखी C. तो यहां पर मैंने दो पॉइंट चूज किए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. पॉइंट 1 पर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर नॉन जीरो होगा क्योंकि करंट है. बट जब मैं इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देखता हूं तो यहां पर क्योंकि करंट नहीं है I इक्वल टू 0, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए. But when it is measured with other methods except Ampere's circuital law, this magnetic field comes non-zero. ये magnetic field non-zero आता है. तो Ampere's circuital law के हिसाब से every point where current is not there, magnetic field should not be there. यानी if current is zero, magnetic field should be zero. But between the plates of capacitor, the magnetic field is non-zero and current is zero. This way, Ampere's circuital law fails to explain the presence of magnetic field between the plates of a capacitor, or you can call Ampere's circuital law fails in the capacitive circuits. Ampere's circuital law capacitive circuits में फेल हो जाता है. ये नहीं बता पाता कि करंट जीरो है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो कैसे हुआ. यहां पर Ampere's circuital law के हिसाब से जो हमने देखा था ये कुछ इस तरह का था. अब मैक्सवेल ने इस लॉ को मॉडिफाई किया, इस लॉ को करेक्ट किया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट. मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की अजम्पशन लिया और यहां पर इस लॉ को मॉडिफाई किया. उसने कहा कि B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू IC. IC is the current in the conductive circuit and इसमें प्लस इसने जोड़ दिया ID, जिसको उसने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ IC प्लस ID. IC is conductive current and ID is displacement current. This displacement current is the new concept that was introduced by Maxwell and hence modified the Ampere's circuital law. So this is the modified form of Ampere's circuital law. Now, what do you mean by this displacement current which was introduced by Maxwell? Maxwell ने कहा कि it is not a current. It is not a current. Rather, it is the electric field varying with time. यानी according to Maxwell, displacement current is not a current, but for a given medium, किसी मीडियम में, किसी रीजन में, it is time varying electric field in an area. The dimension of this value, time varying electric field, matches with the dimension of current. So ID equal to epsilon naught, the symbol for medium, d phi E by dt. Phi E यानी electric flux. और if I write epsilon naught d by dt, phi तो हमें पता है E into A होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया. सो आई कैन से ID इक्वल टू epsilon naught A dE by dt. dE by dt इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये टाइम का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन है. सॉरी. नाउ डायमेंशन, इस अगर पूरे यूनिट का मैं डायमेंशन देखूं, पूरी की पूरी वैल्यू का डायमेंशन देखूं तो क्या आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा. एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ए एरिया है जिसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम. टाइम का होता है सेकंड.
न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सी से 1 पावर सी की कैंसिल, तो व्हाट रिमेन्स कूलम्ब पर सेकेंड, और वी नो कूलम्ब पर सेकेंड इज नथिंग बट एम्पियर. सो दिस क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई dt, या हम कहें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, is having the unit of current, hence it is called displacement current. Now the properties of displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या प्रॉपर्टीज है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको देख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले, दिस करंट इज नॉट अ करंट, इट इज अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टाइमली चेंजिंग और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. Number 2, this current is found between the plates of capacitor only during charging or discharging of capacitor. जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है या फिर डिस्चार्ज हो रहा होता है, ये करंट तभी मिलेगा. When current becomes steady, when current becomes constant, displacement current becomes zero. तो अगर करंट चेंजिंग है, टाइम के साथ बदल रहा है, यानी कैपेसिटर को आइदर ये चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ही डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ कंडक्शन करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है जितना कि कंडक्शन करंट का, यानी बोथ द करंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इट कैन फ्लो इन इंसुलेटर्स और इन वैक्यूम. जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो वैक्यूम में और इंसुलेटर्स दोनों में फ्लो कर सकता है, बट कंडक्शन करंट सिर्फ मेटेलिक मीडियम में फ्लो करता है. तो ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसकी कंडक्शन करंट से. डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी टू द करंट अलोंग विद कंडक्शन करंट. लेट अस सी, ये एक बैटरी है, इस बैटरी ने सर्किट में करंट भेजा, सपोज आईसी, बट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आइदर इंसुलेटर इज फील्ड और air is filled, but we know conduction current cannot travel, but still then we see IC this side. So what is the source this IC went to this side? क्या एक रीजन था कि हमें पता है कि करंट तो सिर्फ मेटेलिक मीडियम में चलेगा, तो यहां इंसुलेटर की प्लेट्स के बीच में या तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में या तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था या फिर एयर भरी हुई थी. यहां पर मेटेलिक मीडियम तो था ही नहीं, तो फिर ये करंट आईसी इधर से इस तरफ कैसे गया? तो इस करंट को कंटिन्यूटी प्रोवाइड की, क्योंकि प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो मैंने करंट को अज्यूम किया है वो है आईडी, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से सेंस बनता है कि ये आईसी आईडी में कन्वर्ट हुआ और अगेन आईडी आईसी में कन्वर्ट हुआ, यानी दिस वे इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू द करंट इन दो सर्किट वेयर it is apparently discontinuous. Now एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिकली, prove that magnitude of displacement current is same as that of conduction current. Magnitude of displacement current और conduction current दोनों इक्वल होते हैं, यानी I need to prove ID equal to IC. हमें पता है ID इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A dE by dt. ये हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. Between the plates of capacitor, electric field is given by sigma by epsilon naught. Sigma is charge density, यानी sigma होता है charge upon area. Surface charge density है, तो E can be written as Q upon A in place of sigma और epsilon naught. अगर इस E की वैल्यू में इस इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास आता है ID इक्वल टू epsilon naught A d by dt of E, और E की जगह Q upon epsilon naught A. Since epsilon naught A both are constant, that's why these are taken out of differentiation. So epsilon naught A divided by epsilon naught A dq by dt, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो what remains dq by dt, और हमें पता है dq by dt is nothing but it is the conduction current, यानी current due to the flow of charge in a particular time. तो dq by dt is time rate of flow of charge and that we call conduction current. So I can say ID equals to IC. Physical significance of displacement current is that it predicts the existence of electromagnetic wave. Electromagnetic wave की existence को prove करता है. Number 2, it establishes symmetry between electric and magnetic laws. अभी upcoming है हमारे पास
मैक्सवेल इक्वेशंस, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लॉज को इसने सिमिलराइज किया है, दोनों में सिमिलैरिटी एस्टेब्लिश की है, सिमेट्री एस्टेब्लिश की है। तो दिस एस्टेब्लिश सिमेट्री बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लॉज। तो before going to electromagnetic wave, let us understand first the four equation given by Maxwell. मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे जो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल इक्वेशंस है। एक बार इनको देख लेते हैं। 4 बड़ी फिनोमिना है फिजिक्स की। पहली इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी थी उसने कहा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस ओवर सरफेस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मैक्सवेल ने दिया, बहुत सिंपल है इनको लर्न करना। पहले दोनों के सरफेस इंटीग्रल लेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, फिर बाद में दोनों के लाइन इंटीग्रल लेंगे। तो ई डॉट डीएस और यहां पर है बी डॉट डीएस सरफेस के ऊपर, दैट इज इक्वल टू 0। ये मैक्सवेल का सेकंड लॉ है, सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दिया उसने कहा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई डॉट डीएल ओवर ए लाइन, एक लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल हमने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, जिसको मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ ये ओरिजिनल इक्वेशन है। आगे मैंने आपको समझाने के लिए इसको चेंज कर दिया। फाई भी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है और फाई होता है बी टाइम्स एरिया। एरिया कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने उसको बाहर ले लिया, तो माइनस एन ए डी बी बाई डी टी, यानी ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम के साथ बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ इक्वेशन 4 था बी डॉट डीएल ओवर लाइन इंटीग्रल, यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आईसी प्लस आईडी, और आईडी की जगह मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी रख दिया। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अगर इसको देखें तो एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर एक बार फिर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ई जो फाई ई होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया, यानी यहां से एरिया मैंने बाहर निकाल दिया तो म्यू नॉट आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई डीटी, यानी ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है मुझे। तो ये 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी। पहली 2 इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल दिखाती है, अगली 2 इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन दिखाती है। जो राइट हैंड साइड में है वो दोनों चारों इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू है। नाउ देखिए इन इक्वेशंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इन 4 इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सबसे पहले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, तो इसका मतलब ये तो गॉस लॉ इसने पढ़ा दिया है हमें। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, यहां पर ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व है, वो क्लोज कर्व नहीं बनाती। क्यों, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये क्लोज कर्व होता है, बट ये कहता है ओपन कर्व है, यानी ये जो लाइंस है ये किसी पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होंगी और ये लाइंस एंड हो जाएंगी किसी नेगेटिव चार्ज पर, तो यानी ये हमेशा ओपन रहेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। और इसका थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, दोनों एक ही जैसे। साथ साथ ये लाइंस एक चीज को, ये जो लॉ है हमारा इस चीज को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है, यानी सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन पेयर और कैन एग्जिस्ट इन पेयर। चार्ज पेयर में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, यानी सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट हो सकता है। किसी बॉडी पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, किसी बॉडी पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो सकता है और किसी पर दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से तीसरा इसने बताया इलेक्ट्रिक मोनोपोल में एग्जिस्ट। ये इस इक्वेशन का जो गॉस लॉ था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था। अगर इक्वेशन नंबर 2 देखें तो इट इज नथिंग बट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में जो इस बात को इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व है। अगर मैं इसको मैग्नेट भी मान लूं, ये नॉर्थ पोल मान लूं, ये साउथ पोल मान लूं, तो नॉर्थ से साउथ बाहर जाती है बट साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ ये चलती है, यानी ये हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज कर्व बिकॉज नाइदर दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ नor दे एंड एट साउथ पोल। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, बट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, यानी ये अपना लूप कंप्लीट करती है। ये कहीं भी स्टार्ट या एंड नहीं होती।
दूसरा, मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। हम देखते हैं कि एक पोल अगर यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ पोल हुआ होता, साउथ पोल ना होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होती, साउथ पोल नहीं होता, तो इसका मतलब ये इस पर आती नहीं। तो ऐसा नहीं होता, मैग्नेट जहां भी है वहां हमेशा ये पेयर में होगा, इसमें डाइपोल फॉर्म में होगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल हमेशा इम्पॉसिबल है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये, इसको मैंने थोड़ा चेंज करके दिखाया है। थर्ड इक्वेशन एक्चुअल ये रूप है, इसको मैं यहां पर ईएमएफ से भी दिखा सकता हूं। अभी तक आप पढ़ के आए -N-d∅b/dt, दैट वाज फैराडे लेंज लॉ। फैराडे लेंज लॉ है, इक्वेशन नंबर 3 हमारी फैराडे लेंज लॉ है, जो कहती है कि -N-d∅b/dt, और यहां से अगर ध्यान से देखें तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था -NA/dB/dt। dB/dt is nothing but time varying magnetic field, and this time varying magnetic field is producing electric field। क्योंकि मैंने बताया था कि V इक्वल होता है E टाइम्स dl, तो E डॉट dl की जगह मैं यहां खाली सिर्फ और सिर्फ EMF लिख सकता हूं E। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। किसको प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो थर्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट सेज दैट ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी सी द इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 अभी रिसेंटली आपने पढ़ी है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया था। और यहां से अगर मैं देखूं तो B डॉट dl को, अगर मैं सिर्फ IC को इग्नोर करता हूं, तो यहां से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट A dE/dt, dE/dt, it is time varying electric field which is the source of magnetic field। तो इक्वेशन नंबर 4 यानी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इंडिकेट्स दैट a time varying electric field is a source of magnetic field। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज 4 इक्वेशंस। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लॉज की सिमेट्री एस्टेब्लिश कर रही है। इक्वेशन 3 को और 4 को देखें तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लॉज की सिमेट्री एस्टेब्लिश करती है। तो दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट यहां नहीं डाला होता तो ये लॉ नहीं पॉसिबल होता। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस ये भी है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is a source of magnetic field, means displacement current also produces magnetic field like conduction current। तो ये symmetry establish करता है। Now this way we can be able to predict the existence of electromagnetic wave। electromagnetic wave इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा। Thank you for watching।